So, good evening, everyone. Let us start with the lecture. What we can do is we can revise until others join in. So, what we know about binomial distribution is binomial distribution is a discrete distribution. Correct? It is a discrete type of distribution. Furthermore, binomial distribution is given by f of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. These are the discrete values from say 0, 1, 2 and so on up till n. Further, the mean of binomial distribution is given as n into p. The variance of binomial distribution is given as n into p into q. Mean is always greater than variance. Mean is always greater than variance. Now, binomial distribution is a biparametric distribution. It is dependent on the two parameters where n is nothing but the number of trials and p is called as the probability of success. P is called as the probability of success. We know that P plus Q is equal to 1. So Q will be equal to 1 minus P. Correct. Then we studied few more properties like whenever your P is equal to 0.5, which is also equal to Q, the maximum value of variance what you get is n by 16. Correct. So this is what we studied and we did lot of sums on this. Now we are about to start with few of the statement sums. Okay, so let us begin. Everybody please read this first question. Everyone please read this first question. हमें दिया गया है 3% आर डिफेक्टिव. अभी जो भी प्रोडक्ट उन्होंने दिया है वो या तो जो है डिफेक्टिव रहेगा या तो डिफेक्टिव नहीं रहेगा. आइदर ऑफ द केस विल बी पॉसिबल. ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ P एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 3% of the parts which are being manufactured are defective. तो अगर 3% डिफेक्टिव है यानी कि 3/100 यानी कि 0.03. अगर 3% डिफेक्टिव है तो कितने परसेंट डिफेक्टिव नहीं रहेंगे? 1 minus 0.03. करेक्ट. ओ wrong मोहित, sorry दिशा, wrong. This will be what? 0.97 ना, 0.97. करेक्ट. अब हमें क्या दिए? फाइंड दी प्रोबेबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स. सैंपल कितना है हमारे? 4 आइटम्स का. सैंपल इज ऑफ 4 आइटम्स. करेक्ट. बोला है नन विल बी डिफेक्टिव. नन विल बी डिफेक्टिव मतलब क्या? P of x इक्वल टू 0. नन विल बी डिफेक्टिव. फॉर्मूला क्या है? NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x. हमें बोला है एक भी डिफेक्टिव नहीं रहेगा. करेक्ट. तो हम इसी सम को कैसे कर सकते हैं? दिस विल बी P ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब NC0 P रेज टू 0 Q रेज टू n माइनस 0. n कितना दिया है हमें? 4. सो दिस विल बी 4C0 P that is 0.03 raised to 0. Q that is 0.97 raised to 4. ठीक है. 4 minus 0 4 आएगा. 4C0 is 1. This is also 1. Can you please tell me what will be 0.97 raised to 4?
what will be 0.97 raised to 4? Okay, it's 0.8852, करेक्ट। तो आपको क्या मिल गया, P ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि जीरो डिफेक्टिव इज व्हाट 0.8852। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस बिट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस बिट? Non-Mac students, any doubts? Non-Mac students, any doubts? ओके चलो, हमें क्वेश्चन में तो इन्होंने इतना ही बिट दिया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा एक और आप सॉल्व करो। करेक्ट, सॉल्व वन मोर। व्हाट इफ आई से यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर टू डिफेक्टिव, तो इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ x इक्वल टू 2, वो क्या है, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। करेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, n का वैल्यू है 4, 4c2 p रेज टू 2, 4c2 p रेज टू 2 q रेज टू 4 माइनस 2। ठीक है, तो 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, p that is 0.03 square, q is 0.97 square. Come on, quickly give me the answer when there are two defectives. Quickly. By that time, let me tell you, this is going to be 4 into 3, that is, this is going to be 24 divided by 4, 0.3 square, it will be 0.009. Please just find 0.97 square. 97 square, it's 0.9409. Correct, so it is going to be the multiplication of 6 into 0.009 into 0.9409. Please tell me what is the final answer. Please tell me what is the final answer. Okay, it's 0.009, 0.005080. Okay, 0.05080. Okay, anybody having any doubts in finding two defectives? Anybody having any doubts in finding two defectives? Okay, करेक्ट। चलो फिर मैं एक और चीज रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको। कल अगर वो आपको ऐसे दे दें तो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, याद आ रहा है एटलीस्ट वन कैसे निकालते हैं? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन? 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेटर क्या होगा, probability of at least one is 1 minus probability of none. Anybody having any doubts in this bit? Anybody having any doubts in this bit? करेक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब जीरो डिफेक्टिव, नन मतलब क्या होगा, नन मतलब होगा जीरो डिफेक्टिव। करेक्ट, इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। करेक्ट, सो दिस विल बी 1 माइनस 4c0 0.03 रेज टू 0 0.97 raised to 4. So this will be 1 minus 0.8852. Correct. So what is going to be our answer? What is going to be our answer? It is going to be 0.1148. It is going to be 0.1148.
एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज बिट्स? करेक्ट, हम लोग का फर्स्ट बिट तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया था, ये हमने सेकेंड बिट ट्राई किया और ये हमने थर्ड बिट ट्राई किया. एनी डाउट्स टू एनीवन इन दीज 3 बिट्स? लेट्स मूव अहेड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. क्या दिया है? 5 coins आर टॉस्ड 3200 times. Find the frequency of distribution of heads and tails. Tabulate the result. Calculate the mean number of success. Calculate the mean number of success and the standard deviation. So let us begin with this solution. हमें बोला है 5 कॉइन्स जो हैं वो उन्होंने टॉस किए हैं 3200 बार. तो 3200 बार का तो मैं बाद में निकालूंगा. पहले मैं निकालूंगा कि अगर मैं कॉइन्स को टॉस करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिलता है. तो जस्ट अ सेकेंड. द वैल्यू ऑफ n विल बी 5. नाउ केयरफुली. सो n is 5. Probability of getting a head is 1/2. Probability of getting a tail is 1/2. अब ध्यान से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड बोला गया है. करेक्ट, तो अगर आप 5 बार टॉस करते हैं, करेक्ट, उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स कैन कम इफ यू आर टॉसिंग इट 5 टाइम्स? मैक्सिमम 5 बार. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो मैक्सिमम कितनी बार आ सकते हैं? 5 बार. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, या तो हेड नहीं आएगा, या तो हेड 1 बार आएगा, या तो हेड 2 बार आएगा, या तो हेड 3 बार आएगा, या तो हेड 4 बार आएगा, या तो हेड 5 बार आएगा. Okay, now I need to find the value of the function p of x. क्या होता है? ncx p raised to x q raised to n minus x. अब पहला हमें क्या बोला है? जीरो हेड. करेक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा? व्हेन आई एम सेइंग जीरो हेड, n का वैल्यू क्या है? 5. सो दिस विल बी 5c0 p raised to 0 q raised to 5. नेक्स्ट p of 1, जरूर मतलब एक हेड आने वाले, एक हेड आएगा तो 4 बार क्या आएगा? टेल. तो p raised to 1 q raised to 4. p of 2, when I am saying 2 heads, so 5c2 p raised to 2 q raised to 5 minus 2 कितना आ जाएगा? 3. p of 3 5 raised to 3. Correct. p raised to 3 q raised to 5 minus 3 will be 2. p of 4 5c4 p raised to 4 q raised to 5 minus 4 is 1. Then finally p of 5 will be 5c5 p raised to 5 q raised to 5 minus 5 0. इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 5c0 is 1. करेक्ट. p raised to 0 is 1. q है हमारा 1/2. तो 1/2 to the power 5 कितना आ जाएगा? 1/2 to the power 5, it will be what? 1/2 raised to 5, that is 1/32. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts? अभी we know that NC0 is equal to NCN. पहला और आखिरी वैल्यू जो है वो सेम आएगा. क्यों? हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक है मतलब उसमें सिंगल पीक है मतलब मीन मीडियन मोड इक्वल होता है. करेक्ट. इसका मतलब सिमेट्रिक मतलब ये पीक वैल्यू से जितना लेफ्ट साइड एरिया होगा उतना ही राइट साइड एरिया होगा.
तो हमें पता है इसका आंसर भी क्या आएगा, देखो 5C5 1 p⁻5 यानी कि 1/2 टू द पावर 5 1/2 टू द पावर 0 1/2 to the power 5. Correct. It is also going to be what? 1/32. First and last bit. Anybody having any doubts? First and last bit. Anybody having any doubts? Any doubts to anyone? Okay. अभी 5C1 होगा 5, ठीक है, और फिर p⁻1 यानी कि 1/2 टू दी पावर 1, और ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 4। करेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 5/2 टू दी पावर 5, दैट इज 5/32। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सिमिलरली हम P ऑफ 4 निकालेंगे। करेक्ट। P ऑफ 4 5C4 भी क्या आएगा 5, ये आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/2 टू दी पावर 1। करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3/2। एवरीबडी डू यू एग्री विद दिस? यस और नो? सभी लोग एग्री करते हैं? कैन आई से इवन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 5/2? ओके। अभी 5C2 एक सेकेंड निकाल लें। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4/2 मतलब 10 आएगा। सो दिस विल बी 10। फिर इधर आएगा 1/2 टू दी पावर 2 1/2 टू दी पावर 3। सो दिस इज गोइंग टू बी 10/2⁵5 यानी कि 10/32। करेक्ट। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूँ 5C3 भी क्या आएगा 10 1/2 टू दी पावर 3 1/2 to the power 2. This will be 10/2 to the power 5, that is 10/32. Anybody having any doubts in the distribution of heads when 5 coins are being tossed? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, हमें मिला क्या है? हमें मिला है ये सब जो है ये क्या है प्रोबेबिलिटीज हैं। ऑल दीज आर व्हाट प्रोबेबिलिटीज। करेक्ट। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसीज। करेक्ट। तो अब मैं बहुत सिंपल चीज पूछता हूँ, जब आप एक बार टॉस करोगे 5 कॉइन्स को, आपके हाथ में 5 कॉइन्स है, ठीक है, उन 5 कॉइन्स को एक बार टॉस करोगे, करेक्ट, तो आपको 0 हेड आने के चांसेस हैं 1/32। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप 5 कॉइन्स पहली बार टॉस करोगे तो 0 हेड आने के चांसेस क्या हैं 1/32। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? करेक्ट। तो एक टॉस में 0 हेड आने के चांसेस हैं 1/32। तो मुझे बताओ 3200 बार जब टॉस करोगे तो क्या चांसेस होंगे? जब आप 3200 बार टॉस करोगे तो क्या चांसेस होंगे? अरे सिंपल, क्या मिलेगा? x विल बी 3200 इंटू 1/32 यानी कितना बेटा 100 आएगा ना? यस और नो? यस और नो? सिमिलरली अब जब आप 5 कॉइन्स एक बार टॉस करते हो, एक बार हेड आने के चांसेस हैं 5/32। क्या है बेटा? एक बार हेड आने के चांसेस हैं 5/32। तो जब आप 3200 बार टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? जब आप 3200 बार टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? x is equal to 5/32 into 3200, that is 500. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts?
अब देखो मैं कर क्या रहा हूं एग्जैक्टली क्या मैं कह सकता हूं कि मैं प्रोबेबिलिटी को हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जो भी मेरी प्रोबेबिलिटीज हैं क्या मैं कह सकता हूं मैं उसे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एवरीवन क्या कहते हैं हम लोग? कुछ याद आया आपको? एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। x इंटू पी ऑफ एक्स करते थे, कुछ याद है? यहाँ पर क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? प्रोबेबिलिटी इंटू n। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? क्योंकि ये अभी रब होने वाला है। पक्का? ओके चलो डन। अभी मैं हर एक की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूंगा। करेक्ट। लेट मी ट्राई टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी बिट। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे है, ठीक है? तो मैं वो नहीं सिखाने वाला। इट इज गोइंग टू बी p of x into n। इट इज गोइंग टू बी p of x into n। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? हमने किया था अभी अभी। व्हाट विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट? फर्स्ट का आंसर विल बी 100। करेक्ट। फिर इसका आंसर क्या आया था? 500। तो इधर भी इसका आंसर आएगा 100, इसका आंसर आएगा 500। अभी एक टॉस में चांसेस हैं 10/32। तो 3200 बार जब टॉस करोगे तो क्या चांसेस बनेंगे? 10/32 इंटू 3200 यानी कि कितना आएगा? 1000। यस और नो? तो ये देखो आ गया आपका 1000, ये आ गया 1000। करेक्ट। चेक करो इज इट मैचिंग विथ योर टोटल फ्रीक्वेंसीज? इज इट मैचिंग विथ योर टोटल फ्रीक्वेंसी? यस और नो? क्या टोटल जो है आपको 3200 मिल रहा है क्या? ओके सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस चीज को भूलना मत। दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। चलो मेजर चीज हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडिंग द मीन ऑफ दिस? मीन क्या होता है? n इंटू पी। n कितना है बेटा हमारा? n कितना है? 5। p कितना है? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है। What is the formula of variance? Everyone, what is the formula of variance? What is the formula of variance? कल ही किया है। Yes, n into p into q, that is 5 into 1/2 into 1/2 यानी कि आ रहा है 5/4। करेक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 मतलब √5/2। it is going to be √5/2। any doubts to anyone in this sum? So let us move ahead for the next sum. Now in this next question what they have told, the probability of a bomb hitting a target, correct, is 1/5। bomb hitting a target is 1/5। बोला है 2 bombs are enough to destroy a bridge। 2 bombs जो हैं वो काफ़ी हैं ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है। बोला है अगर हम 6 बॉम्ब एम करते हैं, इफ़ वी आर एमिंग 6 बॉम्ब्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। क्या मैं कह सकता हूँ अगर मेरे कम से कम 2 बॉम्ब भी बरोबर हिट हो गए इसका मतलब ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा? डू यू ऑल एग्री विद दिस? कैन आई से दैट
कि कम से कम अगर 2 बॉम्ब भी हिट हो गए मतलब हमारा ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 1/5. तो Q क्या हो जाएगा? नॉट हिटिंग द टारगेट 1 माइनस पी 1 - 1/5 दैट इज 4/5. ऐसे उन्होंने कितने टारगेट्स जो हैं वो रखे हैं? दैट इज 6 टारगेट्स को उन्होंने एम करके रखा है. अब बोला है 2 बम्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय ब्रिज, यानी कि कम से कम 2 बम, ज़्यादा लगेंगे तो भी चलेगा. अब आपके पास 2 मेथड हैं कि आप पहले निकालें भाई 2 बम हिट हो या तो फिर 3 बम हिट हो या तो फिर 4 बम या तो फिर 5 बम या तो फिर 6 बम. करेक्ट. तो जिनको भी फॉर्मूलाज जो हैं वो याद होने में दिक्कत होती है दे विल गो बाय दिस मेथड. या तो अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से मैं माइनस कर दूं कब कब 2 से कम बम लगेंगे. यस और नो? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? इसका मतलब 1 जब एक भी बॉम्ब टारगेट पे हिट नहीं हुआ है प्लस सिर्फ एक ही बॉम्ब टारगेट पे हिट हुआ है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ, 1 - P(0) प्लस P(1). अरे कल आप नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना प्लीज. ठीक है. इसका मतलब 1 - इन ब्रैकेट NC0 P(0) Q(n-0). Similarly, NC1 P(1) Q(n-1). n हमें दिया गया है 6. 1 - 6C0. P है हमारा 1/5 टू द पावर 0. 4/5 टू द पावर 6. इधर आ जाएगा 6C1 1/5 टू द पावर 1. 4/5 to the power 6 minus 1, that is 5. Correct. So let us quickly solve this. I think everybody has calculator so they can use it. I will not use, I will keep it as it is. ठीक है. तो मैं जब कहूँगा तब आप मुझे वैल्यूज बता देना. तो 1 - 6C0 तो आएगा 1. करेक्ट. और 1/5 टू द पावर भी आएगा 1. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी 4/5 टू द पावर 6. What will be 4/5 to the power 6? So it turns out to be 0.2621 plus, correct, 6C1 will be 6. 1/5 हो जाएगा 0.2. Correct. Please tell me what will be 4/5 to the power 5. It is 0.32768. Now, please tell me what gives you the addition of the first term plus second term. करेक्ट. आप पहले टर्म और दूसरे टर्म को ऐड करके मुझे फाइनल बताइए कि 1 में से क्या माइनस करना है. So it turns out to be 0.65528. Correct. So what will be 1 minus 0.65528? It turns out to be 0.3446.
6, 8। एक्चुअली इतना बड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 मैक्सिमम 3 प्लेसेस बहुत हो गए। करेक्ट। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस एग्जाम्पल? नॉन मैथ स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टू यू ऑल? करेक्ट, आपको सिर्फ वैल्यूज पहचाननी है, बाकी आई थिंक आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सो लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सम। सो हियर इज आवर नेक्स्ट सम, लेट्स गो अहेड फॉर द सेम। ओके, सो व्हाट इट्स गिवन टू यू इज an experiment success twice as many times as it fails। ठीक है, सक्सेस रेट जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट का ट्वाइस है। तो मैं ऐसे लिखता हूं भाई, सक्सेस फेलियर। तो एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज मेनी टाइम्स एज इट फेल्स। तो अगर एक बार फेल हो रहा है तो 2 बार सक्सेस। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? 2/3। नजरीन समझा? सक्सेस क्या होगा? 2/3। करेक्ट। फेवरेबल अपॉन ऑल पॉसिबल, यस और नो? करेक्ट। सिमिलरली क्यू क्या आ जाएगा? 1/3। अब बोला है फाइंड द चांस दैट इन 6 ट्रायल्स, इन 6 ट्रायल्स मतलब n का वैल्यू दिया है 6, देयर विल बी एटलीस्ट 5 सक्सेस। अभी एटलीस्ट बोला है, सो अब आपके पास है एटलीस्ट 5, मतलब या तो आप P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 निकालिए। करेक्ट। या तो फिर योगिता देखो आपका क्यों गलत है, या तो फिर आप क्या करो, टोटल में से माइनस करो P ऑफ x लेस देन 5, यानी कि 1 माइनस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4। योगिता डिसाइड कर लो कौन सा करना है, क्योंकि नहीं, हर बार आपका वो एटलीस्ट मेथड सही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अब देखो इधर ट्रायल्स कम थे। करेक्ट। कल अगर 10 होता, 15 होता तो फिर बात अलग होती। तो फिर 4 कैलकुलेट करना इज मोर इजियर देन कैलकुलेटिंग और रिपीटिंग द प्रोसीजर 5 और 10 टाइम्स। करेक्ट। सो डू यू बिलीव योगिता that over here option 1 will be more better for us to solve? Okay, so what I will get? P of x greater than equal to 5. This will be 6c5 2/3 to the power 5, 1/3 to the power 1 plus 6c6 2/3 to the power 6, 1/3 to the power 0। तो 6c5 तो 6 आएगा। करेक्ट। और 2/3 टू दी पावर 5 बताइए क्या आएगा? और ये 1/3, 6c6 विल बी 1, 2/3 टू दी पावर 6 और फिर इधर 1। करेक्ट। सो दिशा से 2/3 टू दी पावर 5 इज 0.131। ओके, 1/3 is going to be 0.333। Then what will be 2/3 to the power 6? So it's 0.0877। Okay, now quickly give me the final answer after multiplying and adding. Okay, so it turns out to be 0.349, sorry, 349। So that becomes the answer for
at least 5. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Request Mohit Advani to please revise mean, median and mode. If you want to understand what is unimodal and bimodal, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को सिर्फ इतना है कि आप पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n +1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालिए, उसके बाद जज कीजिए कि वो इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, और अगर नॉन इंटीजर है तो जो आपको आंसर मिला है उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट आप लेंगे। मोहित, ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, आज दोबारा से या तीसरी बार बता रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू दैट स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज रिवाइज मॉडुलोस, मोड्स रिवाइज करो। बाइनोमियल में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे आपको सिलेबस में नहीं है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर मोहित? Okay, so we will stop here. In the next lecture, we will continue with your Poisson distribution and few sums on binomial distribution. Okay, until that, stay home, stay safe. Thank you.